গুড মর্নিং ফ্রম কাশী বিশ্বনাথ মানে বারাণসী, যেখানে মেনলি ভারতবর্ষের বা বলতে পারো পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে একটা, যেটা এখনো পর্যন্ত অ্যাক্টিভ। দেখতেই পাচ্ছ, গতকাল আমি চলে এসেছি কাশী, আর এখন পুরো রেডি হয়ে গেছি, যাচ্ছি বিশ্বনাথের মন্দির। সকাল 5টা থেকে মন্দির খোলা থাকে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি যাইনি, একটু লেটে যাচ্ছি। তার কারণ কালকে এমনিও আমার শরীর খুব একটা ভালো ছিল না, তার জন্য আজকে একটু লেট করে উঠেছি। এবার আমরা যাচ্ছি মন্দিরে। টাইম আপডেট সকাল 6:30 মতন বাজে। মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা, ফোন কোনো কিছু অ্যালাউ নয়। আগে পুজো সারবো, তারপরে কিন্তু এক্সপ্লোর করব পুরো কাশী। তো চলো সরাসরি যাই মন্দিরের দিকে, আর দেখি কীরকম অবস্থা আছে। মন্দিরের লাইনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশেষে দর্শন পেলাম মহাদেবের। আফটার অল পুজো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। মেনলি পুজো দিতে আমাদের সময় লেগেছে অলমোস্ট 2 ঘন্টা 10 মিনিট মতন। মেনলি কিছু ইনফরমেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো তোমাদের দিয়ে রাখা দরকার। তার মধ্যে এক হচ্ছে কোনো রকম ডিজিটাল আইটেম, মানে ঘড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল তো বটেই, ইভেন ডিজিটাল ওয়াচ নিয়ে যাওয়া কিন্তু অ্যালাউ নয়। লেদারের কোনো আইটেম নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। পার্স নিয়ে ঢুকতে দেবে, বাট সেটা লেদারের নয়। বিভিন্ন জায়গায় এটা লেখা আছে কী কী চলবে, কী কী চলবে না, তার একটা বড় ছবি তুলে আমি ভিডিওতে দিয়ে দেবো। তবে আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখছি, যে যদি যাচ্ছ তাহলে কিন্তু জুতো রাখার বা ডিজিটাল আইটেম নিয়ে যাওয়ারও জায়গা আছে, ওখানে রাখার জায়গা আছে, ওখানে গিয়ে রেখে দিতে পারবে, কোনো প্রবলেম হবে না। অ্যাটলিস্ট আমাদের তো কোনো প্রবলেম হয়নি, আমরা যদিও রেখেই যাইনি, আমরা সমস্ত কিছু হোটেলেই রেখেছিলাম। হোটেল থেকে রেখে তারপরে বেরিয়েছিলাম, তো অসুবিধা হয়নি। জুতোটা শুধুমাত্র যেখান থেকে ডালা নিয়েছি সেখানে রেখে দিয়েছি। যেমন কেদারনাথের গলি হয়, তেমন কাশী বিশ্বনাথেরও গলি আছে, সেই গলিতেই কিন্তু সমস্ত কিছু রাখার ব্যবস্থা আছে। যদি চাও তো ভেতরে নিয়ে যেতে পারো, এবং ওরকম জায়গাতে গিয়ে কিন্তু রেখে দিতে হবে। পুজোর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অ্যামেজিং। আমি 2013, 14 বা 15 ওরকম টাইমে একবার এসেছিলাম, তার বদলে কিন্তু প্রচুর ডেভেলপ হয়ে গেছে। শুধু ডেভেলপ নয়, দর্শনার্থীদের জন্য ব্যবস্থা কিন্তু বিশাল ভালো। হ্যাঁ, বারবার করে চেকিং হয়। যেহেতু পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, সেহেতু এবার প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট করা। আগে ব্রেকফাস্ট সারবো, ব্রেকফাস্ট সেরে সরাসরি কোথা দিয়েছিলাম ভুলে গেছি, ব্রেকফাস্ট সারবো, তারপর চলে যাবো লোকাল কিছু সাইট সিন করতে। আগে জায়গাটা ভালো করে দেখে নেব, কাল ভৈরব, পাতাল ভৈরবের যত মন্দির আছে সেগুলো দেখে নেব। চলো আগে ঝটপট ব্রেকফাস্টে সেরে নিই। A few hours later. বাস, আবার ড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ আমি আমার নর্মাল লুকে চলে এসেছি। এথনিক আপাতত বন্ধ। তো এইবার আমরা সাইট সিনে বেরোবো। টাইম আপডেট 12:21, অনেক লেট হয়ে গেল বেরোতে, কিন্তু যেহেতু একা আসিনি, বাবা মার সাথে এসেছি, সঙ্গে আরও লোকজন আছে, তাই একটু লেট তো হচ্ছে, কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই। যেমন বিশ্বনাথ দর্শনেও একটু লেটে গেছিলাম, বাট কোনো সমস্যা হয়নি। সব কিছু একটু স্লো চলছে, তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে আমার তো মনে হচ্ছে না। দেখা যাক কী দেখতে পাই, আর যা আজকে দেখতে পাবো না তা পরশু দিন দেখবো, কারণ কালকের জন্য আলাদা সারপ্রাইজ আছে। সেই জন্যই যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, কারণ আসতে চলেছে একটা বড় সড়ো সারপ্রাইজ। অনেক ভোটাভুটি বার্গেনিং করার পরে আমরা আলটিমেটলি গাড়ি বুক করে নিয়েছি লোকাল সাইট সিনের জন্য। 1200 টাকা এক একটা গাড়ি, প্রত্যেকটা গাড়িতে 5 জন করে যেতে পারে। এখন ওদিকেই যাচ্ছি। অটো প্লেন অটো হচ্ছে আজকে আমাদের যানবাহন। অটোয় চেপে পৌঁছে গেছি সারনাথ। বানারস থেকে প্রায় 16 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে, গঙ্গা নদী আর বরুণা নদীর একদম কিনারায় এই সারনাথ, যেখানে সাঁচির বুদ্ধস্তূপ আছে, সারনাথ মন্দির আছে গৌতম বুদ্ধের। এখানেই পৌঁছেছি, এখনও পর্যন্ত ভেতরে যাইনি। ভেতরে কী অ্যালাউ সেম থিং, জানি না, গেলেই বুঝতে পারবো কী অ্যালাউ নয়। এর আগে যখন এসেছিলাম তখন তো অ্যাটলিস্ট ক্যামেরা অ্যালাউ ছিল। দেখবো গিয়ে কী অ্যালাউ আছে।
देखिए, बनारस अंदर कहीं भी आएंगे तो ये टेम्पल जो है 2 नामों से जाना जाता है। इसका पहला नाम है मूलगंध कुटी बिहार, ठीक, और दूसरा नाम है श्रीलंका टेम्पल। बनारस अंदर ज़्यादा कहीं आएंगे तो बोलेंगे श्रीलंका टेम्पल हमको जाना है, तो लोग यहीं का एड्रेस देंगे, और नहीं तो हाँ सारनाथ में, और नहीं तो बोल देंगे मूलगंध कुटी बिहार। देखिए श्रीलंका के देखिए अनागाई धर्मपाल जी, हाँ, ये बुद्धिस्ट थे। इन्होंने इस टेम्पल का 1931 में निर्माण कराए हैं, हाँ 1931 में। और बगल में देखेंगे बौद्धि ट्री, फर्स्ट ब्रांच बौद्ध गया, सेकेंड ब्रांच श्रीलंका और थर्ड ब्रांच यहाँ लगाया गया है 1932 में। 5 शिष्यों से यहाँ मिलन हुआ, बप्पा, भादिया, महानामा, कौंडी, अस्सागी, ये परम 5 शिष्य उपदेश दे रहे हैं। बर्मा वालों ने मॉडल तैयार किए हैं, आप देखेंगे। उसी में बगल में जर्मनी की महारानी अष्ट धातु का घंटा दान में दी है, जो प्रेयर के समय शाम को 6 बजे बजाया जाता है। 2 लोग मिलकर बजाते हैं, उसका आवाज़ 3 किलोमीटर तक जाता है। उसमें मंक देखेंगे घुमाने वाला मंत्र, कुछ लोग मुंह खोलकर जोर जोर के मंत्र को बोलते हैं, कुछ लोग मन ही मन करते हैं, जिनका वो भी नहीं करने आता ऐसे घुमा देते हैं, पूरा मंत्र का उच्चारण हो जाता है। किनारे किनारे पास में देखें कपड़े टांगे गए हैं, देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, वो सब कपड़े। ये अदर कंट्री के लोग अपनी अपनी भाषा में मनोकामनाएं लिख के टांग देते हैं, 1 महीना बाद उतर जाता है, फिर उतना हो जाता है। जैसे हम लोग के धर्म में जाते हैं तो घंटी बांध देते हैं, लड्डू पेड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें पूरी होती है, वो लोग कपड़े पे लिख के टांग देते हैं। तो हम लोग एक टेम्पल में सूज उतारेंगे, दोनों टेम्पल में दर्शन करेंगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ फ़ोटो लेते रहिएगा। और ये स्टैचू जो बना है सम्राट अशोक का, ये अभी 20 दिन हुआ, ये नया लगा है, क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था ये। महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रानी महामाया और बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। बुद्ध ने जो है, ये तो महाराजा के लड़के थे, इन्होंने देखा कि ये मोह माया है, चाल में हम फंसे हुए हैं, ऐसे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने अंदर तय कर लिए कि हमको ज्ञान की प्राप्ति करना है। और ये उस समय गए जिस समय इनकी पत्नी यशोधरा गर्भ से थी, पेट में बच्चा पल रहा था, और रात में निकले बिन बताए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये निकल पड़े और यशोधरा से पूछे भी नहीं, न अपने माता पिता से पूछे, न अपनी पत्नी से पूछे, किसी से नहीं पूछे, निकल पड़े। कुछ वर्षों बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, वापस आते हैं तो इनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित अवस्था में थी। ऐसे गार्जियन है दादा, इनके लड़के अगर बिना बताए कहीं चले जाएंगे और देर रात में आएंगे तो ये बोलेंगे कहाँ अब तक घूम रहे थे। तो उसी तरह से वो बिना बताए चले गए थे। आए तो इनकी पत्नी यशोधरा काफ़ी क्रोधित अवस्था में थी, गुस्से में आकर के गांव वालों को इकट्ठा कर दी। इकट्ठा करने के बाद बुद्ध को बातों से प्रताड़ित करने लगी, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। करते करते गुस्से में, उस समय पुत्र राहुल हो चुका था, तो अपने पुत्र को धक्के मार के बुद्ध के पास के गिर जाता है। बोलती है कि जाओ मांग लो, आ गए हैं। तो बुद्ध बोलते हैं बेटा हमारे पास केवल ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, केवल तुम्हें ज्ञान ही दे सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान अपने पुत्र राहुल को दिए। देने के बाद जब यहाँ आए तो ये पूरा घनघोरा जंगल था, घनाघोर जंगल था ये, इसमें केवल हिरण रहते थे और बुद्ध। तो जो आप मॉडल पे देखे हैं 5 शिष्य, उन्हीं लोगों से मिलन हुआ और उसके बाद यहीं पे उपदेश हुआ। ये स्तूपा देख रहे हैं ना, इसका पहले पुराना नाम था दादा ऋषि पतन। जैसे ही बुद्ध आए
तो नाम उपदेश हुआ, नाम चेंज हो गया सारनाथ। सार का मतलब उपदेश, नाथ का मतलब भगवान, क्योंकि विष्णु के 9वें अवतार। फिर उसके बाद सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध, उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ, तो उस पर विजय प्राप्त किया। तो अपने शासनकाल में स्तूप का जो है हाइट और ऊंचा करा दिया। इसका निर्माण कराया 500 ईस्वी में। कराने के बाद उसका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन दोनों से प्रचार करवाया चीन, श्रीलंका, एशिया बौद्ध धर्म का, क्योंकि बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था वो। तो सम्राट अशोक में 1,20,000 बुद्धिस्ट थे। तो उसमें से कुछ और लोग अन्य देवी देवताओं को मानने लगे, तो इसको गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं केवल बुद्ध को मान रहे हैं। तो अपने ग्रुप से 60,000 बुद्धिस्टों को निष्कासित कर दिया। ये स्तूप का निर्माण, इसका हाइट है 103 फीट, चौड़ाई 93 मीटर। इसके सामने सीढ़ी बना है, बुद्धिस्ट लोग उसका परिक्रमा करते हैं और उस पर कैंडल जला करके मंत्र पढ़ते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आएंगे, फोटो ले लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा टेम्पल जो चंदन का बना है। यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑटो में बैठेंगे, दूसरा टेम्पल चलेंगे, जापानीज टेम्पल, अशोक पिलर, सांची, मध्य प्रदेश सांची स्तूप जानते हैं ना, उसका कार्बन कॉपी गेट बनाया जो 200 के नोट के पीछे दिखेगा। यहाँ से निकलने के बाद वो चीज़ दिखाएंगे। ऊपर ये झूमर देख रहे हैं, ये लकड़ी इंडिया से जापान से वहाँ से बन गया है, जिसपे गोल्ड पॉलिश किया गया है। और पीछे 5 स्टैचू जो देख रहे हैं वो फाइबर का है, पीछे देख रहे हैं ना 5 स्टैचू। और ये मंत्र लिखा है नाम म्यो हो रेंगे क्यों, ये जापानीज लैंग्वेज है। इसका मतलब होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उस तरह से समझ में आता है। तो होता है चित्त जल पावक गगन समीरा, जो 5 तत्वों से शरीर बना है। जैसे हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय का जाप होता है, अलग अलग लैंग्वेज है, चीज़ एक ही है, क्योंकि विष्णु के 9वें होता है। सिद्धार्थ बचपन का, सिद्ध पुरुष की निशानी, कान, नाक और बाँह ये लंबे लंबे दिखते हैं। इनका जो है ये वहाँ देख रहे हैं अजामू बाँह, एक भगवान श्री रामचंद्र जी का घुटने से नीचे जाता था और एक इनका, बाकी किसी इंसान का नहीं जाएगा। पाँव में अशोका चक्र है जो ज़्यादा चलने वाला होता है, चक्रधारी। ये मंत्र को प्रेयर में 108 बार बोला जाता है। दोनों तरफ जैपनीज ढोल हैं, ये सब बजाए जाते हैं। 8-10 लोग मिलकर के मंत्र को बोलते हैं, बजाते हैं। इधर देखेंगे ये ब्लैक स्टोन, इसको प्रेयर के समय टच किया जाता है, ओम शब्द की ध्वनि निकलती है, टेम्पल कंपन जैसा महसूस होता है। बगल में देखेंगे एक स्टैचू बना है, जिस समय अन्न जल त्याग कर साधना में लीन थे, बिल्कुल वैसे दिखते थे, शरीर में केवल जान ही रह गया था। और जो जल में सीप होता है ना, इनके ऊपर चढ़ के सर पे ठंडक दे रही थी। उधर बगल में फोटो ले लेंगे, उसके बाद आगे शांति स्तूप। इसका हाइट है 72 फीट। इसमें देखेंगे चारों दिशाओं में 4 मुद्रिकाएं बनी हैं। इंडिया गवर्नमेंट बना रहा है, अभी थोड़ा कार्य अधूरा इसीलिए बंद है, नहीं तो यहीं से हम लोग एंट्री कर जाते हैं। बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ, चारों जगह का इसमें दर्शाया गया है। बौद्ध गया का ऐसे है, लुम्बिनी का ऐसे, सारनाथ का ऐसे और कुशीनगर का ऐसे। ये सामने देखना एक कुशीनगर मॉडल तैयार किया गया, ठीक इसी अवस्था में इनकी डेट हुई थी। परिनिर्माण डेट कहाँ हुआ था? कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, कुशीनगर गोरखपुर पड़ेगा, गोरखपुर में है। और ये देख रहे हैं ना, ये सिंबल जापान के, जब भी लोग अपना टेम्पल बनाते हैं तो ये हर टेम्पलों के आगे ही रहता है। जैसे हिंदू धर्म में शिवलिंग मंदिर में, नंदी जी बाहर, ठीक उसी तरह से ये छोटा सा टेम्पल आता है, फालून टेम्पल।
বারাণসী হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, দেখি আর টুকটাক কী দেখার আছে, তারপর ঝটপট বেরোতে হবে, পৌঁছতে হবে আমাদের আবার গঙ্গা আরতি দেখতে, কারণ গঙ্গা আরতি খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। তবে ইউপি আমার হেই পছন্দ হয়েছে। ইউপিতে সবাই সেলফ প্রোক্লেমড ভাই, বুঝতে পারছো কী ধরনের ভাই, সবাই মোটামুটি ইউপিতে ভাই। বাট আমার তো খুব পছন্দ, আমি এর আগেও ইউপি এসেছি, আমার ইউপি সবসময় বেশ ভালো লাগে, বেশ ভালো। চলো আবার বেরিয়ে পড়ি। বারাণসীতে একটা দিন কিন্তু কাটানো জাস্ট কোনো ব্যাপার না, জাস্ট কোনো ব্যাপার না। অলরেডি পৌঁছে গেছি তুলসী মানস মন্দির, আর দেখা যাচ্ছে অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে এসছে, ভিড়ভাড়টা প্রচুর আছে।